so in this video we will discuss about the further chapter, okay, the further part of the chapter, that is now we will discuss about the wandering seeds. Okay, so what do you mean by wandering seeds? वैंडरिंग सीड्स मतलब जो सीड्स इधर से उधर वैंडर करते रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स तो एक ही जगह पे रहेगा, क्या मूव करेगा? सीड, ओके, बिकॉज प्लांट्स cannot move around, and once they grow they remain in the same place, but their seeds are great travelers. Okay, they can travel, they can reach far and wide. So look at picture 1 on the next page and see the flying seeds. Okay, so this is the picture 1 and now you see the flying seeds. Okay, so these are the flying seeds. So have you ever seen any seed that can fly? So your answer will so just think, okay, just think once, have you ever seen any seeds that can fly? So your answer will be yes, I have seen them. Okay, definitely, I mean maximum people have almost in the life have seen, definitely. Okay, flying seeds. Then next question, what is it called in your area? आप इसको अपने एरिया में क्या बोलते हो? तो आपने जो देखा है जो फ्लाइंग सीड्स, उसको अपने एरिया में क्या बोलोगे? तो इट इज़ कॉल्ड बुढ़िया के बाल. ओके, बुढ़ी का बाल सुने हो ना, बुढ़ी का बाल, या जो भी जो बॉम्बे जो होता है, ठीक है, बॉम्बे लड्डू, बहुत कुछ नाम से इसको जाना जाता है. तो इट इज़ कॉल्ड बुढ़िया के बाल. एंड लुक, यू आप लिख सकते हो ऐसा, एंड लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल बाय फ्लाइंग. तो आप अपने सीड कलेक्शन देखो और गेस करो कि कितने सारे वैसे सीड है जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बाय फ्लाइंग. तो क्या हो जाएगा? I think seeds of cumin, aniseed and mustard may have been spreading by flying. Okay, क्या है? cumin, aniseed and mustard. Answer, ठीक है. Now look at picture 2. This seed, तो ये वाला जो सीड है ना picture 2 का, ये फ्लाई नहीं कर सकता, but it can still travel by sticking on to the fur of animals or on our clothes. In this way it gets a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mistral. So yes, ये एक स्टोरी है. जॉर्ज मिस्ट्रल के कपड़ों में क्या हो जाता है जब वो वॉक करके आते हैं अपने डॉगी के साथ, डॉगी में, और उनके चप्पल में, स्लीपर में, ठीक है, जो है वो पहने हुए रहते हैं. अपने क्लॉथ्स में क्या हो जाता है? सीड्स, ठीक है, डॉग के फर में, और उनके क्लोथ्स में जो सीड्स आ जाते हैं, ठीक है, सीड स्टिक कर जाते हैं. तो वो फिर क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड उसके बाद वो देखते हैं कि सीड्स हैड मेनी टाइनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर, एंड दिस गिव मिस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेल्क्रो. ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर. तो वो इससे आइडिया उनको मिल जाता है एक वेल्क्रो, ठीक है, वेल्क्रो बनाते हैं उनसे. एंड वेल्क्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज, bags, belts and many more. So what a way to take inspiration from nature. Okay, so next, now look at these pictures and given below and guess how the seeds travel and reach different places. कैसे seeds travel किए different places में, ठीक है. कुछ plants क्या होता है, spread करते हैं seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, जब soybean pod पक जाते हैं तो वो burst करते हैं और उनके seeds बाहर, seeds are thrown out. Okay, तो have you ever heard their sound? क्या आपने उनका sound सुना है? तो क्या आप सुने हो कभी सोयाबीन, ऐसा कभी हुआ है? अगर आप सुने हो तो yes बोलो, नहीं सुने तो no बोलो, ठीक है. then आपकी मर्जी. then think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. अब ये सोचो कि अगर seeds spread ही नहीं हुए और एक ही जगह पे रह गए तो क्या होगा? If the seeds did not spread out, they would fall in the parent bed itself, leading into struggle for water, minerals and sunlight. As a result, none of the plants would grow properly or survive. मतलब proper nutrition उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो स्ट्रगल करेंगे एक दूसरे में ग्रो करने के लिए, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, यही होगा. देन मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड. तो कैसे कैसे सीड्स स्प्रेड कर सकते हैं? तो सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स फर्स्ट. सेकेंड इज़ ह्यूमन भी स्प्रेड कर सकते हैं, विंड, हवा से भी, एंड वाटर से भी, पानी से भी, ठीक है. तो बर्ड्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन्स, विंड एंड वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट, हु केम फ्रॉम वेयर? ओके, तो have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another. मतलब हम लोग, ठीक है, हम humans, हम लोग कहाँ से लाते हैं seeds? We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden.
isn't it? So later हम लोग गार्डन में लाते हैं ना नर्सरी से या कहीं से भी सीड्स अरेंज करके, ठीक है? तो हम लोग भी कर रहे हैं ना सीड स्प्रेड, ठीक है? तो चिलीज़ कहाँ से आया है? चिलीज़, यू नो, चिलीज़ केम फ्रॉम साउथ अमेरिका इटसेल्फ, ओके? साउथ अमेरिका से चिली आया, यहाँ पे इंडिया में आया, तो यही है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गिवन है, और ये वाला सेक्शन, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये आप अपनी फन पार्ट है, ये आप अपने से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। नाउ इन दिस पार्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस गिवन, आई विल डिस्कस, एंड आफ्टर दैट your chapter will be over, okay? So ये क्या है? रीमा has drawn this picture of the seed sprouted by her. रीमा ने एक पिक्चर ड्रॉ किया of the seed sprouted by her, okay? And what do you think the seeds need for sprouting? सीड को क्या चाहिए? आप क्या सोचते हो स्प्राउटिंग करने के लिए? राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने वर्ड में लिखना है। हाउ वुड रीना सीड लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? रीना सीड को कैसे दिखेंगे? आई मीन हाउ द सीड्स रीना सीड लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भी आपको वो लिखना है, और आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर? आप ऐसे लिख सकते हो कि सीड्स नीड वाटर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग। सीड्स को चाहिए वाटर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग। इफ द seeds do not get water, there would be no change in them, and if they got water but not air, they would not sprout at all, they would swell up, ठीक है? क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या? हाउ डू सीड स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? राइट इन योर ओन वर्ड्स। कैसे सीड स्प्रेड करते हैं फार ऑफ प्लेसेस में? आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखोगे? Seeds are spread by birds, animals, air and water. Birds and animals throw out seeds after eating the fruit, and thus the seeds spread out, okay? Similarly, some light seeds are spread out by wind, some fruits are carried out by water, the seeds are spread out, ठीक है? बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा चैप्टर। और देखिए प्लीज़, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। इससे मैं भी इंटरनली मोटिवेटेड रहूँगी, ठीक है? सो प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क and keep watching my videos, and please guys do like, share and subscribe with your friends, okay? Thank you.